So balancing of redox reaction by oxidation number method. Okay, by oxidation number method. So you have understood how to find oxidation number of various elements. ठीक है? So let's practice something. Let's practice. I am giving questions. Find oxidation number of elements underlined. Whatever is underlined, you find oxidation number of those elements. Okay. Uh, mm. You keep on doing. I'm writing after that. This should be a practice. Average you get. Average. In balancing, average is required. Ah, yes. Let's get the value. Okay. In this case, how much coming? Plus. Iodine, iodine.
Hmm. Chromium. Now what is the value? Pencil, that is. So it is plus 2. Okay. If it is XCF2 plus 2. So out of this anything is doubt, you tell me. So any student is having doubt anything. Huh? FeC2O4 देखते हैं. This is called ferrous oxalate. So if you want to find oxidation number, first you break into ions. So if you break like this, Fe2 plus C2O4 2 minus. If you break into ions, it will be ferrous oxalate. Oxalate is C2O4 2 minus. So you need to find oxidation number of carbon. So here carbon how much? Carbon, let us take X. So it is 2x plus oxygen how much? Oxygen, let us take minus 2 into 4. Okay, is equal to minus 2. So it is coming 2x is equal to minus 8 this side. 8 minus 2. How much coming? Plus 6. So x is equal to plus 6 by 2 plus 3. Okay. So carbon is coming plus 3. सही है? So anything else? Anyone which is difficult for you, tell me. Ki3, oxidation number of iodine. Potassium is plus 1. If you break, potassium is plus 1. Iodine is I3 minus. So if iodine is I3 minus, each iodine how much? Say x. So 3x is equal to minus 1. So x is equal to minus 1 by 3. Okay. Is it clear? BaMnO4. You break it. Break. If you break, it will be barium 2 plus. Barium 2 plus. So MnO4 minus. So MnO4 minus. So barium 2 plus MnO4 minus coming. So now you get manganese. Manganese is X. X minus oxygen is 8 is equal to minus 1. So X is plus 7. Okay. Huh? H3PO2 देखते हैं. H3 hydrogen is plus 1. So plus 1 into 3 plus phosphorus we don't know X plus oxygen minus 2 into 2 minus 4 is equal to 0. Okay. So here X is equal to how much? Plus 1 na. So oxidation number method you practice. One book is there, I told you already, Language of Chemistry.
Okay, language of chemistry book you purchase. So from this symbol balancing formula and balancing of equation, from that book you practice, you will get all type of variety questions. So all oxidation number finding you practice from this book. Lang oh, so many publication available. You can take a Chang publication, okay, or any publication which is available in the market. You take this book, Language of Chemistry. So symbol valency formula and balancing of equation, oxidation number, all things are there. And lots of equations are there. You can practice. Several equations are there. Several methods are there for balancing. So this is essential book for you for the elementary level. So you need to practice it now. If you do not practice in inorganic chemistry and in this chapter, you will be very weak. Okay. So remember this. Uh, BR3, yes, BR3 minus. BR3 minus. Yes, same. Uh, so if you want to see exact oxidation number, uh, so BR2 plus BR minus. BR2 plus BR minus will give you BR3 माइनस ऐसे होता है. तो BR2 में ये जीरो है ऑक्सीडेशन नंबर. BR माइनस में ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम होता है. BR माइनस में ये -1 ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो BR3 माइनस में BR2 और BR माइनस होता है. तो इसमें 2 ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, 1 ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होगा. तो एवरेज कितना देखते हैं. एवरेज है 0 इंटू 2 प्लस -1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर आर 3. तो -1/3. दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. हाँ हाँ आयन डाइपोल इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होगा, लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर इतना ही आएगा. ओके. हाँ H3PO2. Hydrogen is +3, +1 into 3. Phosphorus we don't know X. Oxygen -2 into 2 -4 is equal to 0. Okay. So S HCF. So xenon don't know X. Fluorine -1, so into 4. Oxygen is -2. So what is X coming? +6. ठीक है. Clear. So you can practice through the attachment I sent, or you can practice from your school reference book, Modern ABC of Chemistry, Dinesh publication, Pradeep publication, Comprehensive Chemistry. Yes, comprehensive also. From any book you practice, okay, you do all questions from a single book. That is enough. So now let's start how to balance the equation. Okay, balancing of equation. Some student might have studied, but some other students are yet to study. Okay, so balancing of equation by oxidation number method. By oxidation
number method. So this is generally used for balancing of neutral equations. Whichever is neutral, that equations you can balance by this method. That is better. Okay. Now suppose you take balancing of equation. Say I am taking K2 Cr2O7. Okay. K2 Cr2O7 plus HCl. Okay. Then you are getting KCl, CrCl3, H2O and Cl2. These are products. Okay. So how to balance these equations? So these equations balancing requires some rules. So first rule number one. Rule number one you write. So rule number one you write. Rule number one, identify oxidation number of all elements. Identify oxidation number of all elements. All elements. And identify and highlight only those and highlight only those where it is undergoing a change. समझ में आया कि नहीं? Undergoing a change. So you can identify oxidation number of all elements, but you have to point out those elements where it is changing. Now you tell me which element oxidation number is changing. Yes. So chromium, you see how much it's there. Already you have done it. Plus 6. In this chromium, how much? Plus 3. What else changing? Huh? Chlorine. -1 to 0. Okay. Remaining all not changing. Potassium +1, hydrogen +1, oxygen -2. Oxygen, hydrogen normally rarely changes. Oxygen and hydrogen never changes. Nahi. Sometimes change also, but rarely changes. So these are elements changing. Alkali, alkaline earth metal do not change. Okay. So if changing, rule number one we have done. Now rule number two. Let's do rule number two. Okay. So rule number two is write two half reactions separately. Write two half reactions separately. Two half RXN I am writing reaction. Write two half reactions separately and balance only those atoms where oxidation number is changed. Wherever oxidation number is changing, that only you have to balance. Don't think of balancing other atoms now. Now only balance those atoms where it is undergoing a change. Is that clear? So now let us see whatever changing K2Cr2O7 changing to CrCl3. You write full, don't write half or partial. So full reagent you write. Oxidation number also mention. So oxidation number is say +6. Here +3. So you check that atom is balanced or not. No, it's 2. Here 1. So rule number 2 you follow. Sometimes students do not follow rule number 2. They start doing rule number 3, 4, 5 and end up with the wrong answer. Okay, that is possible. So HCl
Now changing to Cl2. Here also is oxidation number 0, here -1, but chlorine is 2, chlorine is 1. First you apply rule number 2. So rule number 2 is very, very, very important. Okay. So rule number 2 is over. Next. Yes, that you do in rule number 3. We'll do step by step. Okay. Rule number 3 is balance balance the charge balance the charge due to oxidation number by adding suitable number of electrons. Okay, by adding suitable number of yeah, electrons. So you balance by charge, balance the charge due to oxidation number. Due to oxidation number, whatever changing, that only atom oxidation you balance. Other element, other atoms don't think now. Okay, so now let us do how it is done. Okay, let's take so K2 Cr2O7, it is plus 6, and changing to 2CrCl3, it is plus 3. Okay, and this is 2HCl, changing to Cl2, this is -1, this is 0. Now charge you take, so chromium plus 6, but you know that oxidation number is defined per atom. But in this, how many atoms? 2 atoms. So 6 into 2 you have to take. Some students take only 6. 6 into 2 you have to take. So left side, let us do rock work. So left side charge is 6 into 2. 6 into 2. This number you have to multiply. 6 into 2 means 12 plus 12. Right side how much coming? Right side 2 into 3. 2 into 3 plus 6. So it's coming plus 6 here plus 12. So in order to balance, yes, in order to balance, remember always higher charge you have to decrease. Higher charge you have to make it lower. So higher charge is plus 12. How can you make it lower? By adding electron. One electron means, yes, one electron minus one. 6 electron minus 6. So 12 minus 6 equals to plus 6. So 6 electron left side coming. So minus 6 means 6 electron. So left side 6 electron coming. You add. Okay. So got 6 electron. So these are balancing over. Don't think of balancing of potassium. Only balance the atom where oxidation number is changing. Why like that? Only those elements where oxidation number is changing, creating disturbance and creating nuisance for balancing of the equation. If you control those elements, then other balancing will be easy. Okay. So now see here oxidation number due to charge and charge due to oxidation number 2 into -1, how much? -2 this side, left side. Right side 0 into 2, 0. So 0 minus 2. So what to do? So this side -2 you add means 2 electrons should come. 2 electrons. Right. So this side 2 electrons, this side 6 electrons. So this is rule number 3 is over. Rule number 4 you write. Rule number 3 is balance charge due to oxidation number. So left side charge you count 6 into 2 12, 2 into 3 6. So you have to decrease 12 minus 6 equals to plus 6. So minus 6 means 6 electron. Okay. So it is 6 electron coming. But here 2 into -1 -2 and 0 into 2 0. So here 2 -2 if you make it both side equal. -2 means 2 electron. So this side 2 electron. Okay. Then rule number 4. Rule number 4 you write. So you have to cancel out electron. There is a law of conservation of
mass in chemical reaction. And there was a law of conservation of momentum in physics you studied. And law of conservation of energy always takes place. Okay. So here law of conservation of electron means total electron gained in reduction must be equal to total electrons lost in oxidation. So you should multiply suitable integer to cancel out electron. So next rule number 4 is multiply multiply suitable integer to cancel out electrons to cancel out here it's not permitting to cancel out electrons in both sides of the half reaction. Okay, so you should multiply suitable integer to cancel out electrons from both sides of the half reaction. Clear? Understood? So should I go to next page? So what was there? K2Cr2O7 was there, and you have added 6 electron, and it was S2CrCl3. This was one half, or 2HCl was giving Cl2. This was 2 electron. This is another half. Okay. Now see. So 6 electron, 2 electron. So what to do? Right side multiply by 3. Left side nothing, 1 or nothing. So now add. How many rule gone? So rule number 5. Add both the half reactions. Add both the half reactions. So you add both the half reaction means what is coming? K2Cr2O7 plus 6HCl coming, and it is giving 2CrCl3 plus 3Cl2. Okay, then rule number 6. Transfer. Rule number 6 you write transfer the coefficient of all the reagents to the original equation. So this coefficient you transfer to original equation. Okay, and do checking. So after that you should do checking. Okay, so you do checking means what? Checking should have some priority so that you can balance within stipulated time. So checking you should do with preference. First preference is giving atoms where ON is changing. This is the first preference. Second preference is given all other cations. Yes. See, 6 electrons is gained. Here 2 electrons is lost. According to rule, number of electrons gained must be equal to number of electrons lost.
How can you do that? So you should follow sequence. Okay. So you should follow sequence. Then only your balancing will be done correctly and within stipulated time. Okay. So if you break the sequence, then there will be problem. Okay. So when you are preparing yourself to go to school, suppose you first wear your shoe, then you forgot that I have not wear socks. So then you are taking socks without removing shoe, isn't it? Means on the shoe you are wearing socks. Okay, it can fit because socks is stretchable. After that you are going to school, isn't it? And suppose you are wearing your pant, okay, but first you thought that you will wear with your naked body, you wear your belt. After belt you are wearing pant, then you are wearing underwear, isn't it? Looks funny, become Spider-Man, right? So this sequence should be followed strictly, otherwise your balancing will not be uh, correctly and timely coming. So if you follow sequence, then easily you can get the balancing of equations, and faster you get the balancing of equation, sooner you get answer in the stoichiometry. Because this chapter is going to be a difficult chapter. The difficulty will be there writing equation, balancing equation, then applying concept. Okay. So now let us apply rule number 6. हाँ बोलो. Yes, पेज में जाएंगे. Yes. तो लेट अस अप्लाई रूल नंबर 6. रूल नंबर 6 में क्या करना है, जो कोफिशिएंट आया उसका ओरिजिनल इक्वेशन में लिख दो उसको. लिख के फिर हम चेकिंग करेंगे. चेकिंग जब करेंगे तब हम लोग केयरफुली करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. okay? तो K2Cr2O7 था, K2Cr2O7 ये आ गया था, प्लस HCl6 आया था, 6 HCl ले लो भाई. उसके बाद प्रोडक्ट क्या आया था, KCl प्रोडक्ट था. KCl यहाँ नहीं है, फिर 2CrCl3 कर दो, फिर हमारा 3Cl2 था और एक वाटर था. ठीक है. अब चेकिंग करना है. चेकिंग किसका करना है, एटम्स वेयर ON इज चेंजिंग. फर्स्ट इसका देखना है. ON किसका चेंज हो रहा था, K2Cr2O7. Cr2 था ना, K2Cr2O7. तो Cr2 का चेंज हुआ था. Cr2 है, Cr2 है, कहीं और नहीं है. ठीक है, क्रोमियम हो गया चेक. अब क्लोरीन का चेकिंग करो. क्लोरीन देखो कितना है, लेफ्ट साइड में 6 है, राइट साइड में 6 + 1 7, 7 + 6 13 है. ओ, प्रॉब्लम हो गया. तो क्लोरीन तो चेक नहीं है. अब एक चीज है, पोटासियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पोटासियम 1 है. तो पोटासियम 2 तो होना है और कहीं पोटासियम नहीं है, तो पोटासियम 2 कर दो. और क्लोरीन को अभी चेक करो. क्लोरीन को कैसे चेक करेंगे, क्लोरीन को चेक करने के लिए यहाँ पे देखो, 2 क्लोरीन 6 क्लोरीन 8 क्लोरीन 8 क्लोरीन प्लस 6 क्लोरीन 14 क्लोरीन हो रहा है. तो यहाँ पे कहीं पे क्लोरीन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको K2Cr2O7 प्लस 14HCl कर सकते हैं, तब क्लोरीन सही से बैलेंस होगा. तो KCl हो गया प्लस 2CrCl3. हाँ, एच तो लिखा नहीं, एच कैसे छोटा सा ऐसे. ठीक है, मिटा देते हैं, तो फिर लिख देते हैं. अभी जा नहीं रहा. तो ये 14 था ना, 16 था,
14 HCl। तो 14 HCl हो गया, सही है। अब हमारा फर्स्ट कंप्लीट, ऑल अदर कैटायंस भी कंप्लीट, कैटायंस पोटासियम था वो भी कंप्लीट हो गया। ऑल अदर आयनाइंस तो इसमें नहीं है, कुछ केसेस में सल्फेट नाइट्रेट ऐसे रहता है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रूल पार्ट 3 वाला नहीं आ रहा, क्योंकि क्लोरीन हो गया, क्रोमियम हो गया और हमारा पोटासियम भी हो गया। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो लास्ट पॉइंट नंबर 4 करना, ये तो नहीं है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में किसको पहले लेंगे ऐसे कुछ नहीं है, वो सिचुएशन के हिसाब से लेना है। जो जिसका फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब जो कम बार यूज हो रहा है, उसको पहले चेक करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो कम बार कौन यूज हो रहा है, इसमें देखो कम बार कौन यूज हो रहा है, हाइड्रोजन एक बार यूज हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन भी एक बार यूज हो रहा है और ऑक्सीजन भी एक एक बार यूज हो रहा है, तो किसी को भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं। 14 हाइड्रोजन है, तो 14 हाइड्रोजन है तो इसमें क्या करो 7 कर दो, तो 7 करेंगे तो 14 हाइड्रोजन हो जाएगा, सही है। तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन लास्ट में जो बच गया वो अपने आप होना चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो ये अपने आप हो गया। तो ऐसे करके हम लोग चेकिंग करेंगे लास्ट में थोड़ा सा, और चेकिंग जो करेंगे उसमें ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करेंगे, और इस सीक्वेंस में चेकिंग करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो गलत हो सकता है। इज दैट क्लियर? हाँ, कौन सा? हाँ, रूल 6 में चेकिंग करना है, दोनों साइड में बैलेंसिंग हुआ है कि नहीं उसको चेकिंग करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से। ट्रायल एंड एरर मेथड से कैसे चेकिंग करना है, देखो कैटायन का बैलेंसिंग चेक करो, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसका बैलेंसिंग चेक करो, उसके बाद एनायन का बैलेंसिंग चेक करो, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बैलेंसिंग चेक करो। तो यहाँ पे हम लोग देखें पोटासियम 2 है, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा तभी होगा। तो क्लोरीन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन 2 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, 8 हो गया, 8 6 14 क्लोरीन हो गया, यहाँ पे 6 है, तो तुरंत इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको 14 कर दो। तो उसको 14 करने से क्लोरीन बैलेंस हो गया, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, पोटासियम बैलेंस हो गया, क्रोमियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बच गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए 14 हाइड्रोजन हो रहा था, इसको 7 कर देंगे, 7 2 जा 14, तो 14 हाइड्रोजन हो गया। तो लास्ट में जो ऑक्सीजन बचेगा वो अपने आप हो जाएगा 7 ऑक्सीजन, तो 7 ऑक्सीजन। So like this balancing will be done. Is that clear? हाँ, बैक जाना पड़ेगा नहीं, ये रूल नंबर 3 था ना, आप 4 यहीं पे था। कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, कुछ कुछ इंटीजर मल्टीप्लाई कर दो ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, वही रूल नंबर 4 है। ठीक है, सही है, हो गया। हाँ, बोलो। तो 14 क्योंकि राइट साइड में क्लोरीन ज्यादा है ना, तो उसको बैलेंस करना है, कैसे करें? तो यहाँ पे हम लोग इसका बैलेंसिंग में खाली Cl2 लिए थे, लेकिन Cl यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो all Cl must be equal ना, both sides same number of atoms. Okay, is it clear? हाँ, tell me. हाँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को वाटर ऐड करो या मल्टीप्लाई करो इंटीजर, दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए। ओके, और लेंदी मेथड मत करो, डायरेक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करके कर दो, उसको ऐड ऐड कर करके जाओगे, तो एडिशन मेनी टाइम्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन। हाँ हाँ हाँ, वो आयन इलेक्ट्रॉन में आएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में मैं क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करो, तो क्वेश्चन KMnO4
plus H2C2O4 plus HCl, ये देगा KCl plus MnCl2 plus CO2 plus KCl MnCl2 CO2 plus water. So try this. I'm coming within 1 minute. आ गया? हाँ, 2 तो HCl कितना आ रहा है? ये 8 आ रहा है ना? सबका आया कि इसको कर दें? हाँ?
देखो जल्दी से मैं कर लेता हूँ। KMnO4 चेंजिंग टू MnCl2, ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का चेंज होगा +7 +2। क्लो कार्बन का चेंज होगा, कार्बन का प्लस कितना है +3, और यहाँ पे कार्बन कितना है +4। क्लोरीन का चेंज नहीं हो रहा, यहाँ क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है, क्लोरीन का चेंज नहीं हो रहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भी चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें मैंगनीज और कार्बन दोनों का चेंज हो रहा है। तो मैंगनीज MnCl2 दे रहा, KMnO4 +7 है। तो पहले रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 2 का जरूरत नहीं है, दोनों साइड एक एक मैंगनीज है। यहाँ पे H2C2O4 है, ये दे रहा CO2, ठीक है, ये +4 है, ये +3 है। रूल नंबर 2 अप्लाई करना है, याद रखो। रूल नंबर 2 क्या है, कार्बन 2 है, कार्बन 1 है, पहले इसको मल्टीप्लाई। ओके, क्लियर? तो हो गया ये होने से फिर ऑक्सीडेशन नंबर देखो, चार्ज देखो, इसका चार्ज कितना चेंज हो रहा है। तो इसका चार्ज +7 × 1 कितना चेंज हुआ, +7, +2 × 1 +2, तो इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, अरे -5 करने से +2 आएगा, तो 5। अब इसका चार्ज देखते हैं। चार्ज में ध्यान में रखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, +3 +4 एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, फिर होता नहीं है। तो रूल सही से अप्लाई करना है। +3 × 2 +6 हो गया इसका चार्ज, ठीक है। इस साइड 2 × 4 +8 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिस साइड। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। 8 - 2 +6 होगा ना, तो इसीलिए -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये साइड 2 इलेक्ट्रॉन, इस साइड 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करना है, इसको 2 में मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 में मल्टीप्लाई करेगा, तभी 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10, तभी इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। तो इसमें 2 आ गया, इसमें 5 आ गया, ये 2 आया, ये 5 आया, तो ये 2 आया, तो मैंगनीज में 2 आ गया, और ये 5 आया, 5 × 2 = 10, यहाँ पे 5 × 2 = 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ तक आ गया हमारा, कहाँ तक आ गया, 2 KMnO4 + 5 H2C2O4 + HCl giving you HCl + 2 MnCl2 + 10 CO2। यहाँ तक हो गया था हमारा, +H2O, यहाँ तक हमारा हो गया था, ठीक है। अब इसका चेकिंग करना है। चेकिंग में मैंगनीज 2 है, मैंगनीज 2 है, कार्बन 10 है, कार्बन 10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल अदर कैटायंस देखना है, पोटेशियम 2 है, नहीं है, तो उसको 2 में मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, ठीक है। हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम मैंगनीज कार्बन हो गया। अब क्लोरीन को देखना, क्लोरीन 2 है, 4 है, 4 2 6 है, और नहीं है तो 6 कर देते हैं इधर, तो क्लोरीन हो गया दोनों साइड में। तो क्लोरीन हो गया, तो फिर अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तो बहुत है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन भी, ये भी है, ये भी है। हम ऑक्सीजन नहीं देखेंगे, हम पहले हाइड्रोजन देख लेंगे। ऑक्सीजन अपने आप होगा, वो होता रहेगा। तो हाइड्रोजन देखते हैं कितना है, 5 दूने 10, 6 16, 16, और कहीं पे हाइड्रोजन नहीं है, इसको अगर 8 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन अपने आप होगा, है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 2 × 4 8, 5 4 20 28, तो 28 इस साइड में होगा। इस साइड में ऑक्सीजन कितना है, 10 2 = 20 + 8 20, ठीक है। इज दैट क्लियर? बोलो। तो कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, वो सब वो वहाँ से कर लो, और इसमें से ये इजी क्वेश्चन है तो हो गया। अब एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ,
इसमें दो से ज़्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो कैसे बैलेंस करें। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। सपोज हम लोग ले रहे हैं रिएक्शन एसिड AS2H3 में लगा, ओके, प्लस HNO3 रिएक्ट करेगा HNO3, ओके। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, H3ASO4 ये आएगा प्रोडक्ट, प्लस ASO2 आ रहा है प्रोडक्ट। अच्छा, एक काम करेंगे, इसको आउट ऑफ बना देंगे। इसको ले लो H2SO4 प्लस NO2 प्लस, हाँ नहीं नहीं नहीं, लास्ट में एक चेकिंग करना है बस। तो ये प्रोडक्ट दे रहा H3SO4 दे रहा है, H2SO4 दे रहा है, NO2 दे रहा है, वाटर दे रहा है। तो अभी इसको बैलेंस करना है, मेरे को हेल्प करो बैलेंसिंग में, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहाँ पे। अब देखते हैं बैलेंसिंग में, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। +5 हो गया, सही है। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है, +4, चेंज हो रहा, ठीक है, वाह। आप देखते हैं आर्सेनिक, इसमें आर्सेनोस सल्फाइड है, आर्सेनोस सल्फाइड में आर्सेनिक का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कितना है, +3। सल्फर का कितना है, -2। तो यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, मतलब +3 होगा -2 होगा, ये भी सोच सकते हो। इस क्रॉस मेथड से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। तो +3 -2, आर्सेनस इसमें +3 है, इसमें देखो ये एस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5, चेंज हो रहा, चेंज हो रहा। और सल्फर इसमें कितना है, इसमें सल्फर +6, चेंज हो रहा। तो इधर से एस चेंज हो रहा, एस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा। सल्फर क्या हो रहा है, सल्फर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ रुक जाओ, 3 नहीं 2 ही बनाएंगे। नाइट्रोजन क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा, तो 2 हाफ ही लेंगे, 3 हाफ नहीं ले, मत लो, 3 हाफ लेने से कंफ्यूजन होगा, टाइम टेकिंग होगा, गलत भी हो सकता है। 2 हाफ ही लो, ऑक्सीडेशन हाफ को एक साथ ले लो, दोनों को एक साथ ले लो। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या करोगे, AS2H3 रिएक्टेंट साइड में लो, प्रोडक्ट साइड में ये दोनों को एक साथ ले लो, H3SO4 प्लस H2SO4 दोनों को एक साथ ले लो, ओके। और HNO3 का क्या करना है, HNO3 तो रिडक्शन एक ही हो रहा, HNO3 से NO2। अगर कोई भी रिएक्शन में 2 ऑक्सीडेशन 2 रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों रिडक्शन को एक साथ लो और दोनों ऑक्सीडेशन को एक साथ लो। ऑक्सीडेशन साथ साथ रहना चाहिए, रिडक्शन भी साथ साथ रहेगा तो अच्छा है, ठीक है। 3 इक्वेशन मत बनाओ, कंफ्यूजन होगा और गलत भी हो सकता है। तो ये लिख लिए, रूल नंबर 1 अप्लाई कर लिया हम लोग, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर हाईलाइट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये ओशियन ब्लू ले लो ऑक्सीडेशन हाईलाइट करने के लिए। तो ये हो गया +3, ये हो गया -2, ओके, ये हो गया +5, ये हो गया +6, ये हो गया +5,
ये हो गया +4। ठीक है, अब क्या करना है, इसको बैलेंसिंग करना है दोनों साइड में। तो दोनों साइड में बैलेंसिंग रूल नंबर 2 फॉलो करना है, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 फॉलो नहीं करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा। तो रूल नंबर 2 में कैसे बैलेंस करना है? हाँ, HNO3 में कितना आ रहा है? हाँ तो ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है फिर। हाँ ठीक है, ठीक है, होगा, ठीक होगा। ये अगर 28 है बाकी सही होगा। ठीक है, ASO4 इसको 2 करना है क्योंकि यहाँ पे AS2 है तो यहाँ पे 2 करना है, प्लस सल्फर 3 है तो 3 कर दो इसको। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, इस साइड में ये हो गया। और रूल नंबर 2 हो गया। इसका रूल नंबर 2 जरूरत नहीं है, यहाँ पे रूल नंबर 2 लगेगा नहीं क्योंकि दोनों साइड सेम इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रोजन। अब क्या करेंगे हम, बोलो? हाँ, चार्ज बैलेंस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना है, +3 प्लस -2, 3 इंटू 2 +6, -2 इंटू 3 -6, तो टोटल चार्ज 0 है इसका। तो इसका टोटल चार्ज लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में कितना चार्ज है, इसका +5 था, ये +6 था। तो ये हो गया 2 5 10 और 6 3 18, 18 10 28, तो ये हो गया +28। तो इसका +28 राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में 0 है, तो क्या करेंगे? हाँ, इसको -28 करना है। -28 के लिए क्या करना है, 28 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देना है। तो यहाँ 28 इलेक्ट्रॉन करने से ये हाफ बैलेंस हो जाएगा। और ये हाफ बैलेंस में इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें +5 इंटू 1 +5 +4 इंटू 1 +4 +5 +4 है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, बस फिनिश। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें 28 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो क्या करें, मल्टीप्लाई करके क्या करें? तो इसको इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 28 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसको 1 में मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे ही रखो। तो इसको ये मल्टीप्लाई करके ऐड करने से क्या आएगा, AS2S3 प्लस रिएक्टेंट देखो 28HNO3, 28HNO3। ठीक है, गिविंग 2H3ASO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 28NO2। सब हो गया, क्या बच गया, और बच गया वाटर। सही है, अब हम चेकिंग करें। है? हाँ हाँ हाँ, तो हम चेकिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे जे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करेंगे। जब एग्जाम पेपर हो गया, 30 मिनट्स पहले पेपर हो गया, तो चेकिंग करते हो ना, हो गया तो पेपर सबमिट करके आ जाते हैं। अगर बाद में पता चला 2 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया तो कितना दुख होगा। मेरे को आता था 100 आउट ऑफ 100 आता, मेरा 2 क्वेश्चन छोड़ दिया तो फिर मेरा गया 8 मार्क चला गया, 92 आएगा, कितना दुख होगा। तो इसलिए चेक करना जरूरी है, हो सकता है पूरा हो गया हो, चेकिंग करेंगे। AS2 है, AS2 है, सल्फर 3 है, सल्फर 3 है, नाइट्रोजन 28 है, कहीं नहीं है, 28 नाइट्रोजन है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बच गया। हम ऑक्सीजन को नहीं करेंगे कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, सब जगह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि मुश्किल होगा। हाइड्रोजन बैलेंस आसान है, 28 हाइड्रोजन, कहीं हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, 3 जगह पे है। ठीक है, 28 हाइड्रोजन है, 6 6 12 हो गया, 28 से 12 गया कितना, 16, 16 इसको 8 करेंगे तो 8 दूने 16 हो जा रहा है, तो हाइड्रोजन हो गया।
हाइड्रोजन हो गया तो ऑक्सीजन अपने आप होना चाहिए। 28 3 जा 84 मालूम है, 84 लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन है, राइट साइड में देखते हैं 8, 12 8 20, 20 56 76, 20 प्लस 56 76 ना, तो हमारा 84 कैसे आएगा? 76 प्लस 8 करने से 84 आता है, इसको 8, हाँ 8 है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। अब जो जो लोग बैलेंसिंग सीख लिए हो, वो लोग तो देखो कि क्वेश्चन का जो आंसर देखो, जिस क्वेश्चन का आंसर में कोफिशिएंट ज्यादा ज्यादा होगा उसको पहले बैलेंस करो। और जो लोग पहली बार सीख रहे हो तो पहले इजी इजी करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे जाओ। ओके। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बुक में बहुत क्वेश्चंस है, कम से कम 200 क्वेश्चंस है, 200 300 इक्वेशन है, उसको बैलेंस कर दिए तो परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है। तो जरूरी नहीं है सब क्वेश्चन करो, देखो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट 30 क्वेश्चन कर लेगा क्वालिटी क्वेश्चन तो एनफ है। ओके। तो कंप्लीटेड। तो उसके बाद मैं एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, ये मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो इस मेथड का मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है P4 प्लस NaOH, ये देगा NaH2PO2 प्लस PH3। इस रिएक्शन में फॉस्फोरस क्या कर रहा है? जीरो, हाँ जीरो से यहाँ पे +1 हो रहा, ये जीरो से -3 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। PH3 में -3 है, इसमें +1 है। तो फॉस्फोरस एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट अंडरगोइंग बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो कोई रिडॉक्स रिएक्शन में सेम एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन is given a special name that is known as disproportionation. तो रिडॉक्स रिएक्शन कई टाइप का है, तो रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप का है वो कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है। तो एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बैलेंसिंग करो, तो कितने टाइप का है उसका नोट्स में भेज दूंगा, उसको पढ़ा दूंगा बाद में। ठीक है। अभी ये सीखो कि बैलेंसिंग कैसे करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया उसको बैलेंसिंग कैसे करना है। तो इसमें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा इसमें। अच्छा वाटर भी आएगा शायद कहीं पे भी, यहाँ पे वाटर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, वाटर आएगा। तो ये अगर ऐसे रिएक्शन हो रहा है तो उसको क्या करना है? तो सेम एलिमेंट अंडरगोइंग रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो सेम एलिमेंट स्टार्टिंग में ऐसे लेना है P4, इसको लेना है NaH2PO2, इसके बाद ये लेना है P4, फिर से लेना है P4, 2 बार लेना है PH3। सही है। तो इसको बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना है? 2 बार लेना है, 2 बार लेके उसको बैलेंसिंग करना है, तभी होगा। अब देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन। अब पहले रूल नंबर 2 हम अप्लाई नहीं किए। रूल नंबर 2 क्या है? फास्फोरस 4 है तो इसमें 4 करो, वो तो किए नहीं हम। रूल नंबर 2 नहीं किए हम, रूल नंबर 4 में चले जा रहे हैं, 3 में चले जा रहे हैं, तो 4 कर दो। इसमें P4 है, 4 कर दो, रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 2 ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, 0, ये +1 है, ये 0, ये -3। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर देख लिए, रूल नंबर देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस बाई चार्ज देखेंगे। बैलेंस बाई चार्ज कैसे करें? 0 × 4 प्लस, इसमें 0 हो गया। इसमें क्या करेंगे? 4 × +1, इसको ऐसे करना है 4 × +1 तो +4। तो +4 0 है, दोनों को कैसे इक्वल करेंगे? यहाँ पे -4, यहाँ पे -4 मतलब क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ हो गया। क्लियर? अब ये हाफ कैसे करें? बोलो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, कहाँ आएगा? हाँ, एस एस,
0 × 4 ये हो गया 0 हमारा। राइट साइड में 4 × -3 ये हो गया -12। तो इसको अगर 12 इलेक्ट्रॉन कर दे लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा हमारा काम 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसमें 12 हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 12। ठीक है, तो अब ऐड कर दो तो ये हो गया 3p4। यहाँ पे आ गया p4 आ गया। तो ये क्या हुआ, 3 × 12, 12 Na H2PO2 ये। यस, हाँ जो भी है आ जाएगा, देखते हैं हमारा। तो ये आ गया। तो इसके बाद आ गया फिर फास्फोरस। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, ये तो नहीं होगा, ये 4pH3 होगा। ठीक है, तो फिर हमारा इक्वेशन में NaOH है, तो यहाँ पे NaOH ले लो। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करेंगे। क्यों करेंगे, तो ट्रायल एंड एरर करने से फाइनल हो जाएगा। तो फास्फोरस 3 × 12, 4 16, 12 फास्फोरस 4 16, फास्फोरस तो बैलेंस है। तो उसके बाद कैटायन देखना है, कैटायन 12 है तो यहाँ पे 12 कर दो बस, 12 हो गया सोडियम। अब ऑक्सीजन। हाँ हाँ बोलो। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें तो एक मल्टीप्लाई किए तो इसमें। नहीं 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 नहीं, इसमें 0 × 4 0 हुआ, इसमें 4 × -3 -12 था। तो इसका चार्ज तो -12 है ना, तो इसीलिए 12 इलेक्ट्रॉन आएगा ना। ठीक है, क्या बोलो। वो तो रूल नंबर 2 है ना, pH3 था, रूल नंबर 2 नहीं करोगे, रूल नंबर 3 तो करना है ना, 4pH3 करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 2 को इग्नोर नहीं कर सकते। सही है, रूल नंबर 2 मस्ट, रूल नंबर 2 नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, गलत हो जाएगा। तो NaOH हो गया। अब वाटर देखते हैं। अब वाटर प्रोडक्ट साइड में था, तो देखेंगे कितना वाटर आएगा, देखते हैं। अब सोडियम बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस होना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, कोई भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर 12 है, इसमें ऑक्सीजन 24 हो गया, तो मतलब वाटर प्रोडक्ट साइड में नहीं आएगा, रिएक्टेंट साइड में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया होगा कहाँ पे वाटर आएगा, मैं तो क्वेश्चन मेमोरी से कर रहा हूँ, मैं मेरा याद था इसलिए कर रहा हूँ। तो वाटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, वाटर अगर यहाँ पे आएगा, बैलेंसिंग करते हैं फिर। तो बैलेंसिंग करते हैं, तो इधर इधर देखो, हाइड्रोजन हमारा 24 हाइड्रोजन, 24 4 3 12, 24 12 कितना है, 36, 36 हाइड्रोजन हो गया। तो इसमें 12 है, तो इसको 24 होना पड़ेगा। तो अगर 12 कर देंगे, 12 दूनी 24, 12 36 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन, हाँ हाँ लेफ्ट साइड में ये आ रहा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, 12 24, 24 ऑक्सीजन है, 24 ऑक्सीजन है। राइट साइड में 12 दूनी 24 ऑक्सीजन, सही है, हो गया फिर। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। अभी क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अगर कहीं पे फंसोगे तो बोलो, फोन करो मेरे को, नहीं तो मैसेज करो। बैलेंसिंग इक्वेशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ
हाँ कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ डिवाइड कर दो बाद में। मिनिमम कोफिशिएंट लेना है, सही है। तो इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेथड में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके। हाँ, तो फिर देखो नेक्स्ट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट में कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो इस मेथड से वो प्रॉब्लम नहीं होगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कुछ नहीं करना है, ये सिंपल है, इजी है। इसमें रूल याद करना है और अप्लाई करना है। तो इस पे, इसमें बेसिक रूल है, नंबर वन, बैलेंस all atoms, balance all atoms other than ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जो एटम है उस सबको बैलेंस कर दो। ऑक्सीडेशन नंबर छोड़ दो, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का झंझट नहीं है इसमें। तो उसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए स्पेशल रूल फॉलो करना है। तो रूल क्या है, एड इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द डेफिशिएंट साइड। Add equal number of water molecules to the deficient side of ऑक्सीजन एटम। समझ में आ रहा? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जहां पे जितना ऑक्सीजन कम है उतना पानी डाल दो। ओके। ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल कम है, 2 वाटर ऐड कर दो। ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन कम है तो 10 वाटर ऐड कर दो। जहां पे जितना ऑक्सीजन कम है उतना वाटर ऐड कर दो। ठीक है। तो एग्जांपल लेता हूं, सपोज 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे हो गया 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। तो इस साइड 2H2, बस सिंपल है। जहां पे जितना ऑक्सीजन कमी होगा उतना वाटर ऐड कर दो, बस। ओके। रूल नंबर 3, लास्ट में बैलेंस हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए और सिंपल रूल है, ऐड इक्वल नंबर of H plus ions to the deficient side, the deficient side of हाइड्रोजन एटम। तो जिस साइड हाइड्रोजन एटम कम है उस साइड उतना हाइड्रोजन ऐड कर दो। ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम जिस साइड जितना कम है उतना H प्लस ऐड कर दो। ठीक है। वो करने से हमारा हाइड्रोजन फुलफिल हो जाएगा। ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जनरली हम लोग आयोनिक इक्वेशन में यूज करते हैं। आयोनिक इक्वेशन, न्यूट्रल इक्वेशन में नहीं कर सकते डायरेक्टली। अगर न्यूट्रल इक्वेशन है उसको आयनिक इक्वेशन कन्वर्ट करो, फिर करो, तब होगा। ठीक है। तो आयनिक इक्वेशन में ये मेथड सही से बैलेंस होगा। ओके। तो एक प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे होता है बैलेंसिंग देख लेते हैं। ओके। हाँ, 3 रूल, ऑल अदर रूल्स रिमेन सेम। मैंने चार्ज बैलेंस,
हाँ वो बेसिक मीडियम, इसको हम एसिडिक मीडियम। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था एसिडिक मीडियम होगा तो H+ वाटर लेंगे। अगर वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो कोई भी मीडियम अपना मर्जी से बैलेंस कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन को कोई भी मेथड से बैलेंस कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। रिएक्टेंट, रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट में आंसर सेम आएगा। हाँ हाँ दिया रहेगा, नहीं देने। हाँ कोई भी मेथड से करो आंसर सेम आएगा, कर सकते हो। ठीक है, कोई इक्वेशन को कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इक्वेशन एक कोई भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये हो गया। और रूल जो है, ऐड चार्जेस, ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस चार्जेस। ओके, तो ये 4 रूल है इसमें, बस और कुछ नहीं। एज यूजुअल बाकी रूल सेम रहेगा, तो बाकी रूल विल बी रिमेनिंग सेम। ओके, राइट। तो अभी देखो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं बैलेंसिंग करने के लिए। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। ओके, तो एक एग्जांपल लेता हूँ बैलेंसिंग करने का। MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस C2O4 2 माइनस, ये दे रहा Mn2 प्लस प्लस CO2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। इसको एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम कुछ भी कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इजी होगा कि इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में करो। आयनिक रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इजी होता है। क्यों ऐसे होता है सीखोगे आगे, आगे जाके खुद ही कुछ पता चल जाएगा। तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। MnO4 माइनस, MnO4 माइनस क्या दे रहा है, Mn2 प्लस। ओके, ये एक हाफ रिएक्शन है। दूसरा हाफ रिएक्शन क्या है, C2O4 2 माइनस गिव्स यू CO2। ये दूसरा हाफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसको कैसे बैलेंस करें। अब पहले बैलेंस करना है ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो इसमें कार्बन 2 है, कार्बन 1 है, तो 2 कर दो, कार्बन हो गया बैलेंस। मैंगनीज 1, मैंगनीज 1, ओके बैलेंस, नो प्रॉब्लम। एंड नाउ यू हैव टू बैलेंस बाय ऑक्सीजन। तो हाउ टू बैलेंस, टेल मी। MnO4 minus is there this side, M S. So in order to balance oxygen 4H2, तो 4 ऑक्सीजन को 4H2 करने से ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 हो गया। ठीक है, ऐसे करना है, हो गया। अब हाइड्रोजन क्या बैलेंस है दोनों साइड में, तो हाइड्रोजन दोनों साइड में बैलेंस नहीं है। इसमें राइट साइड में 8 हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में नहीं है, 0 है, तो क्या करें, 8H प्लस कर। नहीं नहीं नहीं, वो होगा, लेकिन अभी अभी हम एसिड मीडियम में कर रहे हैं। बेसिक मीडियम में जब करेंगे OH माइनस वाटर देंगे, अभी H प्लस दे दो। ओके, तो ये H प्लस दे तो हो गया। अब क्या करना है, इसको इसको हमें देखना है कि चार्ज बैलेंस। तो चार्ज बैलेंस कैसे करें,
तो चार्ज बैलेंस के लिए दोनों साइड में हम ले लेते हैं, इसका चार्ज कितना है -1, ये -1 है, ये चार्ज जो है -1 है, -1 + 8 कितना होगा, -1 + 8 +7 +7 है, इस साइड कितना है, हाँ +7 है, इस साइड +2 है। तो कैसे +7 को +2 कैसे करें, तो -5 करेंगे, +7 - 5 = +2, -5 मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन, तो लेफ्ट साइड 5 इलेक्ट्रॉन कमिंग, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कर दो, तो दिस इज ओवर। And now C2O4 2 minus giving you 2 CO2. Oxygen 4 oxygen is balanced already. There is no hydrogen. Oxygen is balanced, no hydrogen, nothing to do. So balance by charge then. This side -2, this side 0. What to do? +2. Yes, +2 electron. So 2 electron, here 5 electron. So in order to cancel out electron, what to do? Into 5 into 2. तो इंटू 5 इंटू 2 करके ऐड कर दो, ऐड करने से क्या होगा, 2 MnO4 माइनस 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 5 C2O4 2 minus gives you 2 Ma2 plus 8 water plus 10 CO2. This is final answer. Okay. हाँ हाइड्रोजन कहाँ, हाइड्रोजन एक जगह एक ही है, तो हाइड्रोजन नहीं नहीं, वो अगर क्वेश्चन में मेंशन किया होगा तब करेंगे, अभी तो क्वेश्चन में यही दिया है ना, तो उसको ऐसे ही लिखना है। ओके, 5 to the 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसल ना, तो नो नीड टू राइट 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। सपोज क्या करोगे, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, और ऐसे ऐसे कैंसिल कर दिए, ऐसे कैंसिल कर दिए, ऐसे कैंसिल कर दिए, तो स्कूल में तुम्हारा टीचर क्या सोचेंगे, दिस बॉय वांट्स टू कैंसिल दिस क्वेश्चन, सो लेट्स कीप 0 मार्क्स। तो ये सब ठीक है, लेकिन 0 दे दिए, क्या काम से, तो इसीलिए लिखो ही मत, क्योंकि स्कूल में क्या होंगे ना, जो टीचर्स, कुछ टीचर्स होते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, थोड़ा सा गलती, वो लोग ढूंढते हैं किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स काटे, है कि नहीं, तो टीचर्स, स्कूल में टीचर क्या करते हैं, देखते हैं कि स्टूडेंट्स को जितना कम मार्क्स दे सके उतना अच्छा होगा, उनको फुल मार्क्स नहीं देना है, वो एक दो स्टूडेंट को फुल मार्क्स देंगे बस, बाकी स्टूडेंट को 1 मार्क कम हो गया, 2 कम हो गया, लेकिन लास्ट में देखा गया कि वही स्टूडेंट जब बोर्ड एग्जाम हो रहा है तो फुल मार्क्स ला रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखो, ध्यान से क्वेश्चन करो केयरफुली। ठीक है, हाँ तो हमारे स्कूल के टीचर भी ऐसे ही थे, पता नहीं क्या। अभी देखो, हम एक देते हैं करने के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे रहा हूँ, पढ़न तो नेक्स्ट पेज में मैं चलता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, तो एक क्वेश्चन देता हूँ, N2H4 ले लो, ये एक हाइड्रोजन है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा, तो हम ले लेते हैं MnO4 माइनस ले लेता हूँ, ठीक है, और ये क्या देगा, ये देगा NO देगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ठीक है, MnO2 लेगा। अच्छा एक चीज ध्यान में रखो,
नहीं नहीं, ये एसिडिक मीडियम में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज ध्यान में रखो, क्वेश्चन बैलेंस के टाइम में H प्लस वाटर, जितना भी आएगा उतना ही फाइनल है। वो क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। H प्लस एंड वाटर वट एवर इज कमिंग विथ कोफिशिएंट, एंड H प्लस वाटर नॉट नेसेसरी दैट H प्लस लेफ्ट साइड में आएगा, वाटर राइट साइड में आएगा। Both can be left side, both can be right side, or either or possible. Anything is possible. You just balance in acidic medium. Do it first. Yes, possible है। सुनो, हम लोग कोई भी मीडियम से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन कौन सा मीडियम में क्या रिएक्शन हो रहा है वो इक्वेशन का मतलब है। हम लोग तो काम कर रहे हैं ना, वी आर डूइंग वर्क एंड वी आर नॉट डिसाइडिंग पॉलिसी, मीन्स वी आर नॉट फ्रेमिंग रूल्स। तो रूल्स अभी इंस्ट्रक्शन है कि इसको एसिडिक मीडियम में करो। तो अगर बेसिक मीडियम में होगा वो फाइनली हम उसको चेंज कर देंगे, दोनों साइड में ओ एच माइनस ऐड कर दो ना, तो फिर बेसिक मीडियम में चेंज हो जाएगा। नो नो नथिंग, नो प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ, कोफिशिएंट बताओ। फिर राइट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में 8H प्लस आना। ठीक है, फिर 6NO 8MnO 10H2 ऐसे आ रहा है। देखते हैं सही में आ रहा है कि नहीं। ओके। अब पहले इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो और टाइम कंज्यूम होगा, और हम लोग टाइम बिंग डायरेक्ट करते हैं N2H4 गिविंग यू NO। ये एक हाफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन हाफ है वो भी जानना नहीं है हमें, हम लोग डायरेक्ट करते हैं MnO4 माइनस गिविंग यू MnO2। ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं पहले, N2H4 गिविंग NO। तो इसको बैलेंस करने के लिए रूल नंबर 2 जो था हमारा, बैलेंस ऑल अदर एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 2 है, इसमें नाइट्रोजन तो 1 है, तो नाइट्रोजन के लिए 2 बैलेंस 2 मल्टीप्लाई करो। ओके। तो ये नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, दोनों में नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन तो करना है बैलेंसिंग। तो ऑक्सीजन बैलेंसिंग कैसे करें। ऑक्सीजन इस साइड 2 ऑक्सीजन है, इस साइड कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन के लिए रूल है, जितना ऑक्सीजन कमी होगा उतना पानी देना है, इसमें पानी डाल दो। ठीक है। तो हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन क्या हाइड्रोजन बैलेंस है। तो हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, तो यही आएगा। हाँ सही है। तो हाइड्रोजन 8 है, इसमें दो 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 4 है, 4 4 8 है, इस साइड 8 हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे, 8H प्लस करेंगे तब होगा, नहीं 8H प्लस किया तो सही है, हाइड्रोजन बैलेंसिंग हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंसिंग जब हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, अब चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस यहाँ पे आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 चार्ज है, राइट साइड में +8 है।
तो यहाँ पे -8 करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तब हो जाएगा दोनों साइड में। सही है कि नहीं, बोलो। तो 8 इलेक्ट्रॉन इफ यू ऐड देन बोथ साइड विल बी इक्वल। तो अभी MnO4 माइनस MnO2 इसको बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में करना है। तो Mn तो बैलेंस है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन इस साइड 4 है, इसमें 2 है, 2 कमी है, तो 2H2O करने से ऑक्सीजन खुश होगा। ओके, तो ऑक्सीजन खुश हो गया। अभी हम हाइड्रोजन को खुश करना है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इस साइड 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। इस साइड कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या करेंगे? 4H प्लस करेंगे तो हाइड्रोजन भी खुश होगा। तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, चार्ज बैलेंस करें। तो चार्ज बैलेंस कैसे करें? इसमें राइट साइड में कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज। लेफ्ट साइड में +4 -1, लेफ्ट साइड में +4 -1, तो ये हो गया। लेफ्ट साइड में +3 हो गया। तो लेफ्ट साइड में +3 हो गया, मतलब अगर -3 करेंगे तभी बैलेंस होगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन करने, 3 -3 कैंसिल। तो इसमें 8 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो इसको कैंसिल आउट कैसे करें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। यस, तो इसको इंटू 3 कर दो, इसको इंटू 8 कर दो, करके ऐड कर दो दोनों को। ठीक है, तो दोनों को ऐड करने से क्या आएगा? 3N2H4 आएगा, 3N2H4 प्लस 3 to the 6 वाटर, प्लस यहाँ पे 8 4 जा 32H प्लस, प्लस 8 MnO4 माइनस। ओके, तो दिस इज गिविंग, प्रोडक्ट करते हैं 6NO प्लस 24H प्लस, प्लस 8 MnO2 प्लस 16 वाटर। ओके, तो जो वाटर कॉमन है, जो H प्लस कॉमन है, उसको कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कैंसिल करने से यहाँ पे आएगा 24 है, 8 है, 32 है, तो 8H प्लस आएगा। अब यहाँ पे वाटर 6 है, यहाँ पे वाटर 16 है, तो 10 वाटर आएगा। ओके, सही है। बाकी बैलेंसिंग हो गया। क्या बोलो? डन। एक एक मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए।
इसको सॉल्व करो। हाँ, रिएक्शन का नेम तो है, नेम से कोई मतलब नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, नेम है। कंपोजिशन, ऑटो, ये रिएक्शन, तो इंट्रा मोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंटर मोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे करके बहुत सारा नेम है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो करो, इसको ट्राई करो। लेकिन याद रखो, लेफ्ट साइड में जो एटम लोगे, राइट साइड में वही एटम का स्पीसीज लेना है। एरो का ऊपर H प्लस रिएक्टेंट साइड में है। आंसर आया क्या? हाँ। नो नो नो, 165 won't come. यस, कमिंग। है नहीं? लाइन डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रहा? तो इसको सॉल्व करते हैं, नहीं तो एक हाफ में ये ले लो। अ, इसके साथ राइट साइड में क्या लोगे? प्लस CO2 भी ले लो, सब ले लो। क्योंकि कार्बन का, नाइट्रोजन का, सबका लेना है।
नहीं तो कैसे बैलेंस होगा? और यहाँ पे MnO4 माइनस है, Mn2 प्लस ले लो। पहले इसको, ये इजी दिख रहा है, इसको कर लेते हैं। तो इसमें 4 ऑक्सीजन है, इस साइड कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करेंगे? 4H2 हो गया। तो that is automatically will come. H plus H2O will automatically come. No need to take. So this side, no need to take. It will be created, na? Don't take. Otherwise, it will be confusion. So now hydrogen you check. Hydrogen this side, how many hydrogen? Yes. Here 8H plus left side पे कर देते हैं। तो okay, now it's coming. तो Mn2 plus 4H2O. Yes, yes. So you check this side charge plus 8 minus 1 plus 8 minus 1. So plus 7 plus 2. So, so if you make minus 5, that means 5 electron left side, then it is okay. Okay. Now this one you check. This one, let us try this one. This is done. This is already done. You have done several times. This one how to do? Yes, carbon 6 to 6, nitrogen 6 9. Yes. So after that, let us do slowly. FeCN6 4 minus. So Fe3 plus 6 CO2 plus 6 NO3 minus. So now you will see oxygen 18, oxygen 12. 12 plus 18 oxygen, 30 oxygen. So this side 30 oxygen, this side there is no oxygen. So what to do? 30H2O we can add. अरे यहाँ पे लिख देते हैं 30H2O. Okay. So 30H2O this side if you do, then as so now hydrogen this side not there, right side no hydrogen. So 30 to the 60 hydrogen. So 60H plus you make. Okay. So 60H plus you are making. Now charge you have to check. Now you tell, so left side how, what charge? Minus 4. So right side what charge? So 60 minus 6. So 54. 54 plus 3, 57 plus 57. So your aim is to make equal charge by reducing higher charge to into lower charge. तो 57 में क्या माइनस करने से -4 आएगा? What should be added? A minus value 61. 57 minus 61 equals to -4. So that means this side 61 electron. Okay. So in this case 61 electron coming. In that case 5 electron coming. So how to cancel out electrons? Okay.
So if you multiply 5, what answer is coming? 5 Fe Cn6 4 minus plus 150 150 water plus 61 MnO4 minus plus 488 H plus. Okay, what is product side? Product side 5 Fe3 plus 30 CO2, 30 NO3 minus plus 300 H plus 61 Mn2 plus 244 H2O. Okay, so this is coming finally, but H plus and water. Yes. So finally H plus. Ah, 188 H plus is coming finally inside. And water, if you take 9. Hmm, yes. नहीं, वही तो मैं बताया कि स्टार्टिंग में जो H प्लस था अभी तो आया वही लेना है। इसको इग्नोर करो, इसको जो था वो उसको मत लो। वो अपने आप आएगा, जितने अपने आप आएगा वही फाइनल है। ठीक है। हाँ, तो 188 H प्लस आया, इसको लेना है यहाँ पे। ओके, इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करना है, तो इसका न्यूट्रल इक्वेशन में दे देता हूँ। ठीक है, इसका न्यूट्रल इक्वेशन में दे। अच्छा, हाँ हाँ, ये घर में कुछ म्यूट कर दिया। तो ऐसे ही इक्वेशंस दिया गया है, मैं तो ऑलरेडी होमवर्क दे चुका हूँ केमिस्ट्री ग्रुप में। ठीक है, वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चन ट्राई करो, इक्वेशंस। राइट। हाँ, तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करो। और जो स्टूडेंट पहले से ही इस मेथड जानते हो, तो जो ऐसे वाला जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो वाला ट्राई करो। ठीक है, कुछ जो लोग पहली बार कर रहे हो उसको स्टार्टिंग से करो। तो बैलेंसिंग इक्वेशन परफेक्ट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में संडे लूंगा, संडे को। तो संडे को फिर 2 to 4, संडे 2 PM to 4 PM। हाँ हाँ, up to 1 PM I have class, up to 1:30, 1:30 to 3:30 I can take otherwise. Morning from morning I have class from 8 o'clock, I have class morning. रात को कितना बजे?
In that group, you unanimously give one time. But remember, 8:30 to 1, I have class. 8:30 to 1. उसमें संडे को क्या टाइमिंग है बोल दो, नहीं तो एक बार इसमें फिक्स हो गया फिर चेंज करना मुश्किल है। ओ, तुम लोग एडमिशन ले लिए, फिर स्कॉलरशिप टेस्ट क्या है? सब लोग तो एडमिशन हो गया और टेस्ट क्या है? ये ऑनलाइन एडमिशन लिए क्या? ऑफलाइन टेस्ट, एडमिशन टेस्ट नहीं दिए? ओ, इसीलिए। तब तो स्कॉलरशिप टेस्ट देना पड़ेगा, क्या करेंगे समझ में नहीं आया। नहीं 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 नहीं, गैस स्टेट होगा नहीं। गैस स्टेट हो जाएगा लेकिन जल्दी से करके फायदा नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये चैप्टर अच्छा से कर। हाँ हाँ, ये सब। हाँ, एक्चुअली सभी टीचर स्टोइकियोमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो मैंने भी स्टोइकियोमेट्री पढ़ा है। लेकिन जो जो टीचर A01 में पढ़ाते हैं वो गैस स्टेट स्टार्ट करती है, तो फिर लास्ट में गैस स्टेट। तो दो चैप्टर तो नहीं हो पाए, तो इसीलिए एक चैप्टर रखा गया, एक चैप्टर कैंसिल हो गया। ठीक है। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है अच्छा, तब ठीक है, तब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है। नहीं 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 नहीं, हो नहीं पाएगा। स्टार्ट तो कर देंगे, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा। नहीं नहीं, एस ब्लॉक नहीं होगा। इसके बाद गैसीय स्टेट है, फिर एस ब्लॉक है। हाँ हाँ, इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट है, फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है। ओके। क्वेश्चन मैं रात को देखूंगा व्हाट्सएप में। ठीक है। तो इफ यू हैव क्वेश्चन,